It's the day 10 of the Pro Wrestling League Season 3 and it's the battle between Delhi and Punjab. Remember, Delhi have not won a match yet. They are still yet to open their account in the Season 3. But Punjab has won 2 matches and lost one. And they will be keen to open their account and to reach the semi-finals. Join me is Sunil Taneja, who is the face of Kabaddi, but now he's a face of wrestling. Of course, how do you see today's match? Just because Delhi is yet to open an account, they have no Sushil Kumar just because of the injury. But still, how do you see this match today? First of all, thank you so much for having me in the Pro Wrestling League. As you very rightly said, I have been associated with the Kabaddi. It's almost the same sport, same genre sport. So it's a huge privilege for me to commentate and to host toss in this esteemed Pro Wrestling League. And coming to this match, it's a match between my heart and my brain because I was born and brought up in Punjab and now living in Delhi for past 12 years. So my heart says Punjab should win. My brain, when I look at the squad, says that Delhi is a better side. But you very rightly said that Delhi have not won any match so far. Punjab have won 2 out of 3, which is a very good beginning for them. And if they win today, they're almost through to the semi-finals. Almost. Not practically, but mathematically we can say. For Delhi, I'm very surprised. I mean, a team which has a legend like a Sushil Kumar, they have Elborav Aslan, they have Sangeeta Phogat. They have been very unfortunate that Sushil has not been able to play even once, wrestle even once. He was blocked in the first match and was not fit in the subsequent 2 matches. And now you broke the news that he is still not fit. That's once again, it's a huge setback to Delhi. Because on paper, I have both the squads, at least probable 9. Delhi looks much stronger. Wrestler to wrestler, weight category to weight category. I can hardly see any heavyweight Punjab dominating heavyweight Delhi or any weight of Punjab dominating any weight category of Delhi. But names don't play. Names matter only on the sheet of paper. Wrestlers have to perform during those 6 minutes. So Delhi, it's do or die. It's karo ya maro. And they have to put in their best efforts because if they lose today, then their chances of reaching semi-finals will be almost zero. If they win today, their chances to go through the next stage will be well alive. So what we have seen earlier in the Pro Wrestling League Season 3 is the biggest setbacks of Pro Wrestling League history. If Sangeeta Phogat is considered and Pooja Dhanta is considered in the UP Dangals, they have defeated world champions and Olympic gold medalist. Who do you think today can be the biggest upsetter of the game? It's a very, very tough question you're asking me. I can hope, Sangeeta has already made one upset. I think Monia, she cannot be blocked today. I'm putting my money on Monia. If Sangeeta can do, if Pooja Dhanda can do, Monia can also do. And let me tell you, because this is a very emotional moment for me, because during those 2 bouts, I was doing commentary. So I'll say it in Hindi, because it's an Indian sport and I'm a Hindi commentator, and my emotions actually naturally come in Hindi language. पूरे देश को भारत पुत्रियों पर गर्व है. एक ऐसा खेल जो कि हिस्ट्री में, खासतौर पर भारत में, मेल डोमिनेटेड रहा. और ये हमारी जितनी भी रेसलिंग की बेटियां हैं, तकरीबन सारी उस राज्य से आती हैं जहां जेंडर रेशो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जहां हमने भ्रूण हत्या के बड़े अनफॉर्चुनेट केसेस सुने हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाएं जहां बड़े कॉमन तौर पे आती हैं. उस स्टेट से, गांवों से, जहां अभी भी ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसी पंचायतें हैं जो लड़कियों को जीन्स पहनने पर आपत्ति उठाती हैं, वहाँ लड़कियों का निक्कर टी शर्ट पहन के प्रैक्टिस करना, सिंगलेट पहनकर मैट पे उतरना, मैं और मेरे साथ हमारे सभी कबड्डी प्रेमी, रेसलिंग प्रेमी, जिन जिन खेलों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ी हैं, दंडवत प्रणाम करने का मन करता है. आई वांट टू बो माय हेड इन फ्रंट ऑफ देम. इतनी बड़ी धारणाओं को तोड़कर इतने बड़े लेवल तक पहुंचना, और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ आकर वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को हराना, ये मेरे लिए दूसरी बात है. इस मकाम तक पहुंचना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, ये हमारे सारे पुराने मिथक तोड़े गए हैं. कल मजाक में हम लोग कमेंट्री में डिस्कस कर रहे थे कि सत्यव्रत बाउट हारे हैं, उनकी पत्नी साक्षी बदला लेंगी. इंडिया में कभी हमने ऐसा सुना है कि पत्नी अपने पति की हार का बदला लेगी? अनफॉर्चुनेटली हमेशा उलट होता रहा है कि पति अपनी पत्नी को बचाएगा टाइप. साक्षी 2 बार जीती हैं. किसी भी पति को ऐसी पत्नी पर गर्व होगा, किसी भी कमेंटेटर को ऐसी चैंपियन रेसलर की कमेंट्री करने पर गर्व होगा, फैंस को ऐसी एक दिग्गज रेसलर की रेसलिंग देखने पर गर्व होगा. सो पूजा ढांडा,
संगीता फोगाट, सारी फोगाट फैमिली, महावीर जी, ये सारे आइडल हैं हमारे लिए। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे रेसलर जो शायद इस मकाम तक ना पहुंचे हों या यहाँ पहुंचकर भी उतना बड़ा नाम ना कमा पाए हों। यहाँ तक पहुंचना सबसे बड़ी उपलब्धि है। समाज की धारणाएं, उनकी कुरीतियां, उनकी पुरानी सड़ी सोच को तोड़कर एक नई मिसाल सेट करना, ये सब सलाम के लायक है। सुनील जी, शायद यही वजह थी कि उस दिन जब पूजा ढांडा और संगीता फोगाट ने हराया तो डब्ल्यूएफए प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण जी अपनी सीट से उठकर खुद मैट पर आकर उन्हें सलाम किया उन्होंने। और अगर आज की टॉस की बात करें तो कितना क्रूशियल रहेगा, क्योंकि किस किस प्लेयर को ब्लॉक कर सकती है दोनों टीम्स, टॉस कितना क्रूशियल रहेगा? टॉस, मैंने अभी इनफैक्ट ब्लॉकिंग शीट देख रहा था। आई डोंट हैव ब्लॉकिंग शीट राइट नाउ, दे डोंट हैव मच चॉइस। अगर दिल्ली की टीम टॉस जीती है, उनके पास एक 74 वेट कैटेगरी है जहां सामने उनके जितेंद्र होने वाले हैं। 74 दिल्ली में सुशील कुमार हैं, लेकिन अगर वो फिट नहीं हैं तो देखना पड़ेगा कि जितेंद्र के मुकाबले जिस रेसलर को उतारने वाले हैं वो कितना फिट है। ऑफ कोर्स एल्बोरो असलान ब्लॉक हो नहीं सकते। हाजी एलियव के सामने देखना पड़ेगा, रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। सबसे पहले तो ब्लॉकिंग का सिनेरियो हमें लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इनफैक्ट दोनों टीम्स के पास। जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से आपको तोलना पड़ेगा कि आपका उस वेट कैटेगरी में रेसलर स्ट्रांग है या वीक है। लेकिन टॉस एक ऐसी चीज़ है, आप टॉस जीतकर एक वेट कैटेगरी को ब्लॉक करके आधी बाउट अपने नाम कर सकते हैं। ऐसा हो या ना हो जरूरी नहीं, क्योंकि 2 बार मेरे साथ साक्षी ने टॉस जीता था और वो काफ़ी खुश थी और अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच उनकी टीम हार गई है। सो अगेन आई विल रिपीट, रेसलर्स पेपर पर नहीं मैट पर लड़ेंगे और उन 6 मिनट्स में जो बेहतर खेलेगा उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी, फिर भी ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहले ही बोल दिया है कि आप धर्म संकट में हैं क्योंकि दिल्ली और पंजाब का मैच है, बट इफ यू वांट टू पुट योर मनी ऑन विच टीम यू विल पुट अवे? मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को छोड़कर एक रेसलिंग प्रेमी वाली बात निकालूंगा, क्योंकि पंजाब अभी थोड़े कंफर्टेबल हैं पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली ने एक भी मैच नहीं जीता है, तो मैं चाहता हूं कि देश की राजधानी जिसमें सुशील जैसा लेजेंड है वो कम से कम अपना अकाउंट खोले, दिल्ली मैच जीते। उससे फायदा ये होगा कि पॉइंट्स टेबल में खलबली मच जाएगी, ज्यादा ऑप्शंस होंगी। अगर हमें चारों सेमीफाइनलिस्ट मान लीजिए 10वें 11वें दिन तक पता लग गए तो उसके बाद के आगे के मैचेस डेड रबर साबित हो जाएंगे। सो आई वांट कि 4 सेमीफाइनलिस्ट में से कम 1 या 2 नाम लीग स्टेज के लास्ट वाले दिन पता लगे। उसके लिए दिल्ली अगर आज जीती है हमारी लीग के लिए ज्यादा अच्छी बात है। That's what yesterday happened as Veer Marathas opened their account, and the points tally is of course a big crucial point now. If Delhi wins today against the Punjab Royals, then there will be a very confusing situation. Who and which team will reach to the semi-final spot? With journalist Avnaz, this is Aishwarya Jain.